اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے آواز قریب ہوتی جا رہی ہے، اور جولی ایک دم ڈر گئی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی، لیکن اس سڑک پر کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر جولی نے دوبارہ ادھر ادھر دیکھا تو ایک دم سے السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل منچن سٹوری۔ تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ کے لیے منچن سٹوری کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں۔ تو جس طرح اکتوبر میں ہیلوئین ڈے آتا ہے، تو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کے لیے ہیلوئین ڈے سے ریلیٹڈ کوئی سٹوری لے کر آؤں۔ جولی اور سینڈرا صوفے پر بیٹھے تھے۔ سینڈرا سافٹ ڈرنک اور سنیک لیے مووی دیکھ رہی تھی، جبکہ جولی اپنے ہاتھوں میں نیل پالش لگا رہی تھی۔ یار، مجھے تو اس روٹین سے بوریت ہو رہی ہے، کب ختم ہوں گی یہ چھٹیاں؟ جولی نے سینڈرا کو مخاطب کیا۔ یو آر رائٹ، سینڈرا نے منہ سے گلاس ہٹا کر کہا۔ جولی اور سینڈرا فرینڈ ہونے کے ساتھ ساتھ رہتی بھی ایک ہی گھر میں تھیں۔ دونوں پڑھنے کے لیے کیلیفورنیا آئی ہوئی تھیں۔ ایگزامز ختم ہو چکے تھے اور دونوں کی چھٹیاں تھیں۔ کیوں نہ ہم کوئی جاب کر لیں؟ سینڈرا نے سوچ کر کہا۔ سینڈی، جاب اور میں؟ جولی نے غرور سے اپنی طرف انگلی کر کے کہا۔ جولی ایک انتہائی مغرور لڑکی تھی اور غصہ اس کا ایسا ہوتا تھا کہ اسے کچھ ہوش نہیں رہتا تھا۔ نوکری تو بہت دور کی بات ہے، میں کسی کی رائے لینے کی بھی زحمت نہیں کرتی، جولی نے حقارت بھرے لہجے میں کہا۔ ارے یار، تم تو سیریس ہو گئی ہو، یہ تو ٹائم پاس کی بات ہے۔ ہم نے کون سی آفس جاب کرنی ہے جو ہمیں باس کے آگے سر جھکا کر کھڑا ہونا پڑے گا؟ ہم اپنے ٹائپ کی جاب تلاش کریں گے، سینڈرا نے تفصیل سے کہا تو جولی نرم پڑ گئی۔ جولی، جولی! سینڈرا جولی کو آواز دیتے ہوئے کمرے میں آئی۔ اسی وقت باتھ روم کا دروازہ کھلا۔ جولی تولیے میں بال لپیٹے باہر آئی۔ کیا بات ہے سینڈی ڈیئر؟ جولی نے مسکرا کر پوچھا۔ جولی کی ساری خوش اخلاقی صرف سینڈرا کے لیے تھی۔ وہ سینڈرا کی بہت سی باتیں نہ چاہتے ہوئے بھی مان لیتی تھی، کیونکہ سینڈرا میں اس کی جان بستی تھی۔ دونوں بچپن کی فرینڈز تھیں۔ جولی، ایک جاب ہے جو ہم دونوں ایک ساتھ کر سکتے ہیں، کل ہمیں چلنا ہے، سینڈرا نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا۔ جاب ہے کیا؟ جولی نے تولیہ ایک طرف ڈالا اور ہیئر ڈرائی سے بال خشک کرنے لگی۔ آرچی کی جاب ہے، فن کا فن، ساتھ پیسے بھی، سینڈرا نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ تم کہتی ہو تو دیکھ لیں گے، جولی نے لاپرواہی سے کہا۔ بس کل ہم آڈیشن میں پاس ہو جائیں تو مزہ آ جائے، سینڈرا نے خالی انداز سے کہا۔ کس میں دم ہے جو جولی کو ریجیکٹ کرے؟ آئی لائک یور کانفیڈینس، سینڈرا نے کہا تو دونوں کھلکھلا کر ہنسنے لگیں۔ اگلے دن جولی اور سینڈرا ریڈیو اسٹیشن پہنچ گئیں۔ وہاں اور بھی لوگ آئے ہوئے تھے، مگر جولی کا اعتماد ہی کچھ اور تھا، اور وہ تھی بھی بہت خوبصورت۔ سب وہاں اس کی شخصیت سے امپریس ہوتے ہوئے نظر آئے، جسے خود جولی نے بھی محسوس کر لیا۔ پھر جولی اور سینڈرا کی باری آ گئی۔ پہلے انٹرویو تھا، پھر آڈیشن۔ دونوں ینگ تھیں، ایجوکیٹڈ تھیں، اور سب سے اہم یہ کہ دونوں باتوں میں ماہر تھیں۔ اگر ان دونوں کی کسی سے بحث ہو جاتی تو سامنے والا ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا۔ دونوں آڈیشن میں پاس ہو گئیں۔ پھر اسٹیشن کے ہیڈ نے ان کے ساتھ سارے معاملات طے کر لیے۔ انہیں نائٹ شو سے کام سٹارٹ کرنا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں ان کا شو ینگسٹر میں مشہور ہونے لگا۔ وہ راک شو کرتی تھیں، دونوں کو اندازہ نہیں تھا کہ کچھ ہی دنوں میں وہ مشہور ہو جائیں گی۔ ان کے شو کی ریٹنگ اوپر جاتی رہی،
किसी को सैंड्रा का मजाक पसंद था तो कोई जूली के उदास अंदाज का दीवाना था। लोगों की फरमाइश पर उनके शो का दुल्हनिया भी बढ़ा दिया गया। दोनों को घर पहुंचते पहुंचते काफ़ी देर हो जाती थी। और ये है आज के शो का लास्ट सॉन्ग, लिंकर पार। इसके साथ ही जूली और सैंडी को इजाज़त दें। कल फिर मुलाकात होगी, सेम टाइम सेम चैनल, ओनली ऑन योर द रॉक शो। गुड नाइट एंड टेक केयर। शो ख़त्म करके दोनों प्रोग्राम हिट की तरफ जाने लगीं। प्रोग्राम हिट ने प्रोग्राम ख़त्म करने के बाद उनको अपने रूम में कुछ बात करने के लिए बुलाया था। यार सैंडी, जाते हुए कुछ लेके चलना, मुझे बहुत भूख लग रही है। घर पहुंचने का मैं वेट नहीं कर सकती, जूली ने सीढ़ियां चढ़ते हुए कहा। दोनों बातें करती हुई प्रोग्राम हिट के रूम के सामने पहुंच गईं। जूली ने दरवाज़ा नॉक किया। यस, अंदर से मिस्टर माइकल की आवाज़ आई तो दोनों ने दरवाज़ा खोलकर देखा। कम इन, मिस्टर माइकल ने मुस्कुरा कर कहा। दोनों अंदर आ गईं। प्लीज सिट, मिस्टर माइकल ने खुश इखलाकी से कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैंने आप लोगों को इसलिए बुलाया है, 2 दिन बाद हैलोवीन डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। हमारा चैनल पूरा दिन खास ट्रांसमिशन नशर करेगा। वैसे तो आप लोग रॉक शो करती हैं, मगर इस रोज़ आप स्पेशल शो करेंगी। ओके सर, सैंड्रा ने मुस्कुरा कर कहा, जबकि जूली खामोश रही। फिर दोनों मिस्टर माइकल से इजाज़त लेकर बाहर आ गईं और पार्किंग में अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगीं। यार सेंट, ये क्या बकवास है, जूली ने गाड़ी का दरवाज़ा ज़ोर से मारते हुए कहा। क्या चीज़, सैंड्रा ने गाड़ी ड्राइव करते हुए कहा। ये हैलोवीन शो और क्या, जूली ने मुंह फुलाकर कहा। तो इसमें क्या है भाई, जब हैलोवीन हर साल सेलिब्रेट करते हैं तो उस दिन उसी हवाले से शो होगा ना, सैंड्रा ने गाड़ी रोकते हुए कहा और फिर गाड़ी का दरवाज़ा खोलते उतर गई। जूली ने गाड़ी में म्यूजिक प्लेयर ऑन कर दिया और थोड़ी देर के बाद सैंड्रा गाड़ी में आकर बैठ गई। उसने बर्गर जूली की तरफ बढ़ा दिया और खुद हाथ में मौजूद सॉफ्ट ड्रिंक कैन खोलकर गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। घर पहुंचकर दोनों लाउंज के सोफे पर जाकर बैठ गईं। यार, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, जूली ने दोनों हाथ सर पर रखते हुए कहा। ऐसा करो कि तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी कॉफी बनाकर लेकर आती हूँ, सैंड्रा ने प्यार से उसका सर सहलाते हुए कहा। कुछ मिनट के बाद जूली फ्रेश होकर बिस्तर पर बैठ गई। सैंड्रा कॉफी का मग लिए उसके पास आई और उसे कॉफी देकर वहीं बैठ गई। सैंडी यार, वो बकवास शो तुम अकेले ही कर लेना और मेरे ना आने का बहाना बना देना। जिस चीज पर मैं यकीन नहीं करती, मैं उसके बारे में लोगों को क्या बताऊंगी। मुझे तो ये सब इंतहाई फजूल लगता है। भूत, चुड़ैल, वैम्पायर, भला इनका वजूद भी है? इन सब के रूप बनाकर लोगों से बेहुदा मजाक करो, डराओ, जूली ने बेजारी का इजहार करते हुए कहा। कम ऑन जूली, तुम अभी तक उसी चीज में अटकी हो। यार, ये सिर्फ एक ट्रेडिशन है जो लोग सेलिब्रेट करके एंजॉय करते हैं, सैंड्रा ने कहा। करते होंगे, मगर मैं इन चीजों पर यकीन नहीं करती यकीन तो तुम ना करो, मगर जो लोग करते हैं उन पर तुम क्यों गुस्सा निकाल रही हो? हर शख्स आजाद होता है अपनी मर्जी करने के लिए, सैंड्रा ने उसे समझाया। अच्छा, तो तुम करती हो इन सब चीजों पर यकीन? जूली ने बेसाख्ता सवाल किया। आई डोंट नो, कुछ सच होता है और कुछ झूठ, मगर इन सब के वजूद से मुझे इनकार नहीं है,
सैंड्रा ने जवाब दिया, अच्छा अब बहुत देर हो गई है, मैं सोने जा रही हूँ, मुझे नींद आ रही है, गुड नाइट। सैंड्रा जूली के रूम से चली गई। स्टूपिड हो तुम भी, बाकी लोगों की तरह। जूली ने मग साइड पर रखा और बिस्तर से उतरकर वॉशरूम में चली गई। जूली ने मग साइड पर रखा और किचन में चली गई। जूली अपने रूम से निकलकर डाइनिंग टेबल पर जब उसने देखा तो नाश्ता ना देखकर वो हैरान हो गई। रोज सैंड्रा जूली के आने से पहले डाइनिंग टेबल पर नाश्ता तैयार कर कर रखती थी, मगर आज टेबल खाली थी। जूली फौरन सैंड्रा के रूम के पास आई। अब दरवाजा नॉक करके सैंड्रा को आवाज दी, मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। जूली ने हैंडल घुमाया और अंदर कमरे में जाकर आवाज दी, सैंडी, मगर सैंडी बिस्तर से ना उठी। तो जूली ने करीब जाकर सैंड्रा को हिलाया। जैसे ही जूली का हाथ सैंड्रा के हाथ के साथ टकराया तो वो चौंक उठी। सैंड्रा बुखार में तप रही थी। ओ सैंडी, जूली ने घुटनों के बल बैठकर सैंड्रा को आवाज दी। सैंड्रा ने अपनी आंखें बहुत मुश्किल से खोली। उसकी आंखें भी सुर्ख हो रही थीं। जूली ने जल्दी से डॉक्टर को कॉल करके बुलाया। डॉक्टर ने कहा कि कोई खास बात नहीं है, दवा खाकर एक दिन रेस्ट करें, ठीक हो जाएंगी। जूली ने सैंड्रा को हल्का पुल्का नाश्ता देकर दवा दे दी और खुद अपना लैपटॉप लेकर उसके बराबर में ही बैठ गई। और दोपहर को सैंड्रा को छींकें भी आने लग गईं। लगता है ये छींकें मुझे पागल कर देंगी। जूली ने डॉक्टर को कॉल करके सैंड्रा के लिए नई दवाई ले ली। सैंड्रा को जोरदार छींक आई तो उसने अपना सर एकदम से पकड़ लिया और सैंड्रा तकिया ऊंचा करके टेक लगाकर बैठ गई। शाम होते होते सैंड्रा का नज़ला बहुत ज्यादा बढ़ गया था। लो सैंडी, ये गरम गरम सूप पी लो, फिर तुम दवा खा लेना। यू नो सैंडी, तुम्हारी वजह से आज का बोरिंग शो मुझे अकेले करना पड़ेगा। जूली ने मुंह बनाते हुए कहा। आई एम रियली सॉरी, सैंड्रा ने सूप पीते हुए कहा। अच्छा तो अब मैं जा रही हूँ, दरवाजा मैं लॉक कर जाऊंगी। तुम ये सूप पूरा खत्म करना और आराम करना, ओके? जूली ने कहा तो सैंड्रा ने आगे से मुस्कुराकर गर्दन हिला दी। हेलो एवरीवन, आज थर्सडे 31 अक्टूबर है। आज का हमारा शो नॉर्मल से हटकर है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि 31 अक्टूबर को हैलोवीन डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसी वजह से आज आप लोगों ने तरह तरह के शो एंजॉय किए होंगे, तो आज हमारा शो भी उसी का हिस्सा है। आज का शो नॉर्मल नहीं होगा, तो आज आप सब लोग मुझे कॉल करके बताएंगे कि कभी आप लोगों ने रियल में भूत देखा है। आज आप लोगों के साथ सिर्फ मैं हूँ, सैंड्रा नहीं आ सकी। आप मुझे कॉल्स करें और अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। बताएं, नंबर आपका जाना पहचाना है। जूली ने नंबर दोहराया और सॉन्ग प्ले कर दिया। दिल तो चाह रहा है कि ये बकवास शो छोड़कर अभी चली जाऊं। इससे अच्छा सैंडी की जगह मैं बीमार हो जाती। कम से कम ये शो तो नहीं करना पड़ता। सॉन्ग खत्म हो गया और जूली ने कहा कि आज का सवाल मैं दोबारा दोहरा देती हूँ। आपने कभी सचमुच का भूत देखा है? तो आज के शो में देखते हैं कि पहली या पहला कॉलर कौन है। हेलो, जूली ने कहा। हेलो जूली, आई एम तूबा। दूसरी तरफ जूली बोली, जी तूबा, क्या बताना चाहेंगे आप? हमारे पुराने घर में अजीबो गरीब चीजें होती थीं, तूबा ने बताया। कैसी चीजें? जूली ने पूछा। रात को हमारे घर की खिड़कियां बजने लगती थीं, तूबा बोली। ये तो कोई चीज नहीं हुई, ये तो हवा से भी हो सकता है। रात को ऐसा लगता कि जैसे छत पर कोई भाग रहा हो।
जूली ने कहा, ये भी कोई अजीब बात नहीं है, छत पर क्या पता बिल्ली वगैरह हो, ये सब वहम होता है और कुछ नहीं। एनीवेज तूबा, आप कुछ और कहना चाहेंगी? सैंड्रा किधर है? तूबा ने पूछा। एक्चुअली सैंड्रा को बुखार है, इसीलिए वो आज शो में नहीं आ सकी। ओके, बाय। जूली ने कॉल बंद करने के बाद सॉन्ग प्ले किया और सुकून का सांस लिया। जूली ने अपने बैग से चिप्स का पैकेट निकाला और खाने लगी। ब्रेक खत्म होने से पहले वो रेडी होकर माइक के सामने आ गई। तो चलते हैं अब हम लोग अपने दूसरे कॉलर की तरफ। हेलो। हेलो जी, कैसी हैं आप? एक लड़का बोला। मैं ठीक हूँ, लेकिन पहले आप अपना नाम तो बता दें। जूली ने कहा। ओह, मैं हैरी। ओके हैरी, आप क्या बताना चाहेंगे? हमारे ऑफिस के पार्किंग एरिया में एक रूह रहती है, हैरी ने बताया। रूह, और वो भी पार्किंग एरिया में? एक्सक्यूज मी, मैं मजाक नहीं कर रहा। मेरे अलावा और भी लोगों ने उस रूह को देखा है, हैरी ने संजीदा होकर कहा। मगर रूह को पार्किंग एरिया में रहने की क्या जरूरत है? वो सोती कहाँ है, वहां तो बिस्तर भी नहीं होगा। तो हैरी ने नाराज होकर कॉल कट कर दी। अब शो खत्म होने में थोड़ी ही देर रह गई, तो जूली ने खुशी का इजहार किया। तो अब हम चलते हैं अपने लास्ट कॉलर की तरफ। हेलो। हेलो सैंडी। हेलो जूली, मैं तलहा बात कर रहा हूँ। तो आज आप क्या बताना चाहेंगे? मैं शुरू से आपका शो सुन रहा हूँ। आपकी गुडनेस ने मुझे मजबूर किया है कॉल करने पे। आपके बारे में मेरी राय है, आपके प्रोड्यूसर को फौरन आपको इस शो से निकाल देना चाहिए, क्योंकि जिस होस्ट को कॉलर से बात करने की तमीज ना हो, तो उसे इस माइक पर बोलने का कोई हक नहीं है। अगर आप इन चीजों पर यकीन नहीं रखती, तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि आप लोगों का मजाक उड़ाएं। ऐसा न हो कि आज आपने लोगों का मजाक उड़ाया है, कल को आपको इसकी कीमत चुकानी पड़े। बहुत ज्यादा गुस्से में था। आपको तमाम कॉलर से माफी मांगनी चाहिए। तो एकदम जूली ने उसकी लाइन कट कर दी और चालाकी से बात बनाई। ओप्स, लगता है लाइन ड्रॉप हो गई। एनीवेज, इसके साथ ही आज के शो का वक्त खत्म हो गया। मैं आपको लास्ट सॉन्ग के साथ छोड़कर जा रही हूँ। आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। जूली ने साइड टेबल पर रखा पर्स उठाया और उसमें से चाबी निकाल के अपने हाथ में घुमाते हुए लिफ्ट में जाने के लिए रेडी हो गई। नीचे पार्किंग एरिया में लिफ्ट का दरवाजा खुला तो उसकी उंगली में घूमती चाबी एकदम से रुक गई और पार्किंग एरिया में बिल्कुल सन्नाटा था। जूली और सैंड्रा रोज इसी वक्त निकलती थीं, मगर आज जूली को न जाने क्यों अजीब सा लग रहा था। जूली के कदम तेज होते जा रहे थे। गाड़ी के पास आकर तो जब उसने गाड़ी में चाबी लगाई तो उसको एकदम से महसूस हुआ कि जैसे उसके पीछे कोई खड़ा हुआ है। जूली एकदम से पीछे पलटी तो कोई भी नहीं था, बिल्कुल सन्नाटा था। जूली को लगा कि शायद मेरा वहम है और जूली गाड़ी में बैठी और अपने घर की तरफ रवाना हो गई। सैंड्रा पता नहीं जाग रही होगी या नहीं, उसने सोचा। फिर अचानक से उसकी कार ने 2-3 झटके लिए और वहीं रुक गई। उसने दोबारा से चाबी से स्टार्ट की गाड़ी को, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। जूली को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। ओह शिट! उसने एकदम से स्टीयरिंग पर जोर से हाथ मारा और बाहर निकलकर जोर से गाड़ी का दरवाजा बंद कर दिया। सड़क बिल्कुल सुनसान थी,
दूर दूर तक कोई गाड़ी का नामो निशान नहीं था। तो उसने जब घड़ी की तरफ निगाह डाली तो रात के 12:30 बज रहे थे। इससे अच्छा था कि वहीं ऑफिस में खराब हो जाती, किसी की मदद तो मिल जाती। 15 मिनट गुजर गए इंतजार करते हुए। ना तो कोई गाड़ी आई और ना ही कोई इंसान नजर आया उस सड़क पर। उस सड़क से जूली को एकदम से किसी के कदमों की आवाज आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे आवाज करीब होती जा रही है। और जूली एकदम डर गई और इधर उधर देखने लगी, लेकिन उस सड़क पर कोई भी नहीं था। तो फिर दोबारा से आवाज आने लगी। फिर जूली ने दोबारा इधर उधर देखा तो एकदम से एक पंपकिन हेड खड़ा था। फिर वो लम्हा भर यूं ही रही, फिर एकदम उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसके दिमाग में घूम रहा था कि आज तो हैलोवीन डे है, जिसमें अक्सर लोग पंपकिन हेड बनते हैं। जूली उसके पास जाकर बोली, क्या आप मेरी मदद करेंगे? वो एक्चुअली मेरी गाड़ी खराब हो गई है। उस पंपकिन हेड की आंखें देखकर एकदम जूली चौंकी। तो उस पंपकिन हेड की आंखें नहीं थीं और आंखों वाली जगह से बहुत ज्यादा रोशनी निकल रही थी। और फिर एकदम से उस पंपकिन हेड ने कहके लगाने शुरू कर दिए। रात के अंधेरे में वो बहुत ज्यादा खौफनाक लग रहा था। उसके हाथों की उंगलियों की जगह नुकीली छुरियां लगी हुई थीं। उस पंपकिन हेड ने जूली पर वार किया, लेकिन जूली अपनी जगह से हट गई। तो जब जूली ने अपने कंधे की तरफ देखा तो उस पंपकिन हेड के निशान थे। जूली ने बगैर सोचे समझे आगे की जानिब दौड़ लगा दी। उसको अपने पीछे गूंजते कहके दूर होते महसूस हो रहे थे। अभी उसको सांस लिए चंद लम्हे भी नहीं गुजरे थे तो उसे एकदम से झाड़ियों में से आवाज सुनाई दी और उसने अपने पूरे वजूद की ताकत समेटी और भागना शुरू कर दिया। भागते भागते झाड़ियां खत्म हो गईं और झाड़ियां खत्म होने पर एक खुला मैदान आ गया और काफी आगे कुछ मकानात दिखाई दे रहे थे। तो जूली को कुछ हिम्मत हुई और भागते भागते उन मकानात की तरफ चली गई। तो जूली एक मकान के बाहर दरवाजा खटखटाने लग गई और पीछे बार बार मुड़ के देख रही थी। उसे ये डर था कि कहीं दरवाजा खुलने से पहले दोबारा पंपकिन हेड आकर उसे दबोच ना ले। तो एकदम से दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और अंदर बिल्कुल अंधेरा था। हेलो, इस घर में कोई रहता है? लेकिन जूली को कोई जवाब नहीं मिला। आगे की कहानी अभी बाकी है। इस कहानी का दूसरा हिस्सा मैं अगली वीडियो में आप सबसे शेयर करूंगी। लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।